Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the topic of chemical bonding and molecular structure. Till the last video, we have discussed what is a chemical bond, how atoms combine to form molecules, okay? What is the first approach, that is Clausius-Lewis approach, what is its basic assumptions, how do we write Lewis symbols and Lewis structures for different molecules, how octet is being completed by the formation of ionic bond and covalent bond. We also discussed the various bond parameters. We discussed how resonance structures are formed for various molecules. And we also discussed what is dipole moment and how is it related to the covalent character and the ionic character involved in the covalent bond. Then we discussed Fajans rule, which covered the presence of covalent character in the pure ionic bonds. So with this, we have completed a major of topics. Now, since we have completed with the Clausius-Lewis approach, we are going to move on to the next theory, that is VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. So kindly watch the video and subscribe to my channel, and if you find the video useful, kindly give it a like. Now, valence shell electron pair repulsion theory. We'll understand what are the basics of this theory and how is it introduced. So, this theory was given by Sedgwick and Powell in 1940. This theory provides the explanation for the shape of the molecules. When we were discussing Lewis dot structures, the exact shape of the molecules could not be suggested by that approach. So this theory covers that limitation of the Lewis-Clausius approach. Now, if we talk about what is the basis of VSEPR theory, it is that it is based on the repulsive interactions of the electron pairs present in the valence shell of the atoms. So we know that the atoms have the valence shell. So the electrons which are present in the valence shell, they are mostly involved in the bonding, right? So when these are involved in the bonding and the electrons pair which are present in the valence shell, they also feel the repulsive interactions with each other, right? So this repulsion between the valence electron pairs, it also affects the shape of molecules. How? That we can understand by understanding this VSEPR theory. So whenever a theory is provided, many of its assumptions and many of its postulates need to be understood. So we'll understand its postulates one by one. The postulates of VSEPR theory. The first postulate: shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. Since I told you in the beginning that this is the theory which we have introduced to understand the shape of the molecules, which was not able to be understood by the help of Lewis-Clausius approach. So we need to establish certain rules or certain postulates which could define how the shape of molecules could be identified. So the first postulate is talking about that a molecule's shape is determined by the help of valence shell electron pairs around the central atom. Now, what is the valence shell electron pairs? So in the valence shell electron pairs, you need to include the bond pairs as well as lone pairs, because it is the total sum of the total valence electron pairs, right? For example, if we talk about the oxygen in water molecule, oxygen is the central atom, so it is forming two bonds with the hydrogen and there is two lone pairs present on the oxygen. So total sum would be 2 bond pairs plus 2 lone pairs, that is 4. So this value of 4 will be helping us to find the shape of the molecule. How? That we'll understand after discovering all of the other postulates also. So up till this, you need to understand the shape of the molecule is dependent on the number of valence electron pair, which is the sum of bond pairs plus lone pairs. Now the second postulate: pair of electrons in valence shell repel one another. So in valence shell, as we talked, there are number of electrons present. So the bond pairs and the lone pairs present in the valence shell repel one another. Now repulsion का मतलब क्या है? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दैट मीन्स एनर्जी रेज कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं.
कभी भी हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कभी भी डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहता, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी शेल, कुछ भी डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहता। सो यहाँ पे जब रिपल्शन हो रहा है, डिस्टेबिलिटी आ रही है, सो उसको बैलेंस करने के लिए और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिपल्शन कब हो रहा है, जब ये पास पास है, अगर थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा। सो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्यूपाई पोजीशंस एट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पोस्टुलेट, द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ओके, सो अगर हम बात करें कि कैसे कैसे रिपल्शन होता है और कैसे कैसे यहाँ पे किसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, किसमें कम रिपल्शन होगा, उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। सो ऑर्डर आप देखो, फिर हम इसको समझते हैं। सो ऑर्डर सेज दैट लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो अब ऐसा क्यों हुआ कि लोन पेयर का लोन पेयर से रिपल्शन ज्यादा है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर का सबसे मिनिमम क्यों है? देखो उसका रीजन क्या है। अगर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में कंपैरिजन करें तो उनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, वो दो एटम्स के बीच में शेयर्ड है और उनके बीच में प्रेजेंट है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसी एरिया में प्रेजेंट हो सकती है, ज्यादा फ्री नहीं है, ज्यादा कहीं भी मूव नहीं कर सकती। जबकि लोन पेयर की बात करें वो कहीं भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल थोड़ी सी फ्री है, थोड़ी सी मोबिलाइज हो सकती है, राइट। सो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि जो लोन पेयर है वो ज्यादा जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो दैट इज द रीजन, क्योंकि जो जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा वो अपने आसपास वाले बॉन्ड्स को शिफ्ट करेगा अपनी जगह बनाने के लिए, है ना, तो वो उनको रिपेल करेगा। सो दैट इज वाई लोन पेयर अगर साथ में आते हैं तो उनमें तो दोनों ही लोन पेयर्स हो गए, मैक्सिमम रिपल्शन होगा। फिर एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का देगा, उसको रिपल करने की कोशिश करेगा, एंड दोनों बॉन्ड पेयर है तो कंपैरेटिवली इतना रिपल्शन उस मॉलिक्यूल में नहीं होगा। सो इस तरह से आप रिपल्सिव इंटरेक्शन को याद कर सकते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 4, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड as if it is a single electron pair and the second or third electron pair of a multiple bond treated as a single super pair. This is an important postulate of Vesper theory. जब हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए स्ट्रक्चर्स, शेप्स को चेकआउट करेंगे तो उसमें जो भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे उसमें ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अजीब लगेगा बट इंपॉर्टेंट है, और जब अप्लाई करोगे तब सिंपल लगेगा। देखो उसने ये बोला कि जो हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, है ना, उनको ही हम काउंट करेंगे। जैसे अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो उसके लिए भी हम बॉन्डिंग पेयर में सिर्फ एक ही बॉन्डिंग पेयर उसको काउंट करेंगे। जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो उसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से सेंट्रल एटम फॉर एग्जांपल कार्बन है, ये आप सेकंड वाला मॉलिक्यूल देख ही लो, CO2 वाला, है ना, सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है, उससे दो टर्मिनल ऑक्सीजन जुड़े हैं डबल बॉन्ड के थ्रू। अब पहले वाला एग्जांपल में देखिए बेरिलियम में सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप बस मुझे ये बताओ कि जो हाइड्रोजन है ना, वो बेरिलियम से सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो अब जो बेरिलियम है उस पे टोटल कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है? लोन पेयर तो कोई नहीं हमें दिख रहा, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स हैं। कौन से? एक लेफ्ट वाला बॉन्ड और एक राइट वाला बॉन्ड, तो इनमें दो बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। CO2 की बात करें तो अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट अगर हम जब बॉन्ड्स काउंट करेंगे यहाँ पे कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उसके अंदर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं एंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी कि जो वेस्पर थ्योरी एप्लीकेबल थी और जो उसका बेसिस बनाया गया उसमें ये बेसिक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको आपको हर जगह अप्लाई करना है। जहां भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल पॉइंट हो, आपको बॉन्डिंग पेयर्स काउंट करने हो, तो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड को ही काउंट करते हैं एज बॉन्ड पेयर। बाकी अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम सिर्फ सिंगल सुपर पेयर नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में आप बोलोगे दो बॉन्डिंग पेयर्स है, सेकंड वाले में भी आप यही बोलोगे दो बॉन्डिंग पेयर्स है, बट आप ये बोल सकते हो सेकंड वाले में कि यहाँ पर दो बॉन्डिंग सुपर पेयर्स है, ठीक है। सो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें डबल बॉन्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है, बट उनको हम काउंट नहीं करते वेस्पर थ्योरी में जब कैलकुलेशंस करते हैं। चलो
अब हमने सारे पोस्टुलेट्स वेस्पर थ्योरी के जो 4 पोस्टुलेट्स थे उनको अच्छे से समझ लिया। अब आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या पॉइंट बोला था कि अगर वैलेंस जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स है यानी कि सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर, उनको यूज करके हम अलग अलग ज्योमेट्रीज बता सकते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, हम कौन सा एग्जांपल ले रहे थे जिसमें हमने सम किया था बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स का, वाटर का एग्जांपल हम ले रहे थे ना। तो ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड पेयर्स थे, 2 लोन पेयर्स थे, तो वैल्यू क्या आ रही थी 4। अब ये 4 वैल्यू हमें कैसे बताएगी कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो हमने हर वैल्यू के लिए ज्योमेट्री पता करके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके फिक्स कर दिया है। ये रहा टेबल जिसमें आप चेक कर सकते हो ये वैल्यूज। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आते हैं तो ज्योमेट्री लीनियर होगी। अगर हम देखें अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया BeH2 का भी और CO2 का भी, उनमें यही तो था, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स हम काउंट कर रहे थे, लोन पेयर कोई भी नहीं था, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों मॉलिक्यूल में कितने थे 2, तो उनकी ज्योमेट्री भी आपको कैसी दिख रही थी, लीनियर। सिमिलरली अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे देन द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। इफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहेड्रल। इफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट ज्योमेट्री इज trigonal bipyramid. If 6 electron pairs are present, geometry is octahedral. So first step to apply Vesper theory and to check the shape of the molecules is to calculate the total electron pairs. That is the sum of bond pairs plus lone pairs, and corresponding geometry you can check for the molecule. Okay. One more important point which we need to consider before moving on to the examples of the Vesper theory and understanding different shapes of the molecule is that I am using the word shape and here I am using the word geometry. So अगर सेम चीज होती तो हम सेम ही वर्ड यूज करते हैं, हम डिफरेंट वर्ड की यूज कर रहे हैं। ज्योमेट्री और शेप 2 टर्म्स कहाँ से आई, तो इनके बीच में एक बहुत ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है बच्चा, उसको समझ लेते हैं। चलो, ज्योमेट्री क्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि इतने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो उसकी ज्योमेट्री होगी। सो ज्योमेट्री को हम जब डिटरमाइन कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल के लिए तो उसमें हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि उसमें बॉन्ड पेयर्स भी इंक्लूड होते हैं और लोन पेयर्स भी इंक्लूड होते हैं। बट इफ यू नीड टू सी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर आप शेप की बात कर रहे हो कि उसकी शेप किस तरह की दिखेगी, हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं उसको, ज्योमेट्री जो एक्चुअली में होगा और शेप जो हम विजुअलाइज करेंगे, उस विजुअलाइजेशन में हम बॉन्ड पेयर्स को काउंट करते हैं, लोन पेयर्स को शेप में इंक्लूड नहीं करते। सो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन द ज्योमेट्री एंड द शेप, that the geometry includes the total electrons pair, that is the bond pair and lone pair, whereas the shape considers only the bond pairs and not the lone pairs in determining the shape. फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो हम पढ़ते हैं ना, मीथेन, अमोनिया और वाटर का। सो उसमें जो मीथेन की और अमोनिया की और वाटर की ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। बट अगर शेप की बात करें, मीथेन की शेप हम कहते हैं टेट्राहेड्रल है, अमोनिया की शेप पिरामिडल बोली जाती है, वाटर की शेप बेंट बोली जाती है। ये कैसे हो रहा है भाई, इसी को हम यहाँ पे एग्जांपल्स में क्लियरली समझ लेंगे कि किसमें कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, उसी से डिटरमाइन होगी कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी एंड उसकी शेप कैसी होगी। करेक्ट। चलो, आई होप कि आपको वेस्पर थ्योरी के बेसिक्स सब काफी क्लियर हो गए होंगे, उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल, AB2 टाइप BeCl2 इसका एग्जाम्पल है। सो बच्चों, अब जो हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम कुछ टाइप्स के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हम उसको जनरलाइज क्यों कर रहे हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ BeCl2 मॉलिक्यूल डिस्कस कर रही हूँ, बट ऐसे और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एक सेंट्रल एटम होंगे और 2 एडजेसेंट बॉन्ड्स होंगे, एडजेसेंट एटम्स होंगे, है ना। जैसे हमारा SO2 होता है, CO2 होता है, तो ऐसे तो और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम उसको जनरलाइज करते हैं। सो AB2 टाइप का मतलब है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो और साथ में उसमें 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो, यानी कि वो 2 बॉन्ड्स बना रहा हो। सो उसको हम बोलेंगे AB2 टाइप मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल BeCl2। सो यहाँ पे अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम है, सबसे पहले हम वो देखेंगे क्या है। सो सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम। फिर हम देखेंगे बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। सो जो बेरिलियम है उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब अगर हम बात करें इसमें टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, सो अभी मैंने आपको बताया था कि जो विस्पर थ्योरी है उसका बेसिक ही ये है, उसका पोस्टुलेट जो बेसिक है कि हम सबसे पहले सेंट्रल एटम के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करते हैं। सो अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं। बेरिलियम में आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये हमने कैसे बनाया, जो हमारी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमको समझ में आया उसके बेसिस पे ये बनाया, उसको हम बाकी चीजों से रिलेट करके फिर स्टडी करेंगे। सो बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 क्लोरीन यहाँ पे एटम जुड़े हुए हैं, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली वो 2 क्लोरीन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंपल 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। सो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्डिंग पेयर्स इंक्लूडेड होंगे। अब बेरिलियम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 2 ही थे, दोनों बॉन्डिंग में यूज होगा, यानी कि इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। सो वी कैन राइट दैट देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स इन बेरिलियम क्रोलाइट। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दैट इज 2 + 0 2। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल आ गए। एंड अभी जो हमने टेबल स्टडी किया था उसमें हमने क्या याद किया था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। सो हियर ज्योमेट्री इज लीनियर। अब अगर इसकी शेप की बात करें, सो मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया ज्योमेट्री और शेप में बच्चों। ज्योमेट्री वो होती है जिसमें हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं, एंड शेप में हम लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। बट अगर हमने BeCl2 पे जो समझा उससे हमें ये पता लगा कि इसमें लोन पेयर तो कोई है ही नहीं। अगर लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगी। जब लोन पेयर होंगे तभी तो हम उसको हटा के शेप देखेंगे, बट यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं। दैट मीन्स फॉर द मॉलिक्यूल BeCl2 द ज्योमेट्री एंड शेप विल बी similar, that is linear. I hope this example is clear to all of you. Moving on to the next example, carbon dioxide, that is CO2. This is also a AB2 type molecule, and जो ये AB2 type molecule है हमने final result के बाद इसको classify किया है। So AB2 type means इसमें एक central atom है कार्बन जिससे 2 bonds बने हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, right? Central atom कार्बन हो गया। कार्बन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। सो आप इसको देख लेना, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। बॉन्ड पेयर्स की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कहीं पे मल्टीपल बॉन्डिंग हो तो भी हम बॉन्ड पेयर्स कितने काउंट करते हैं, ओनली 2। सो इसका जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके थ्रू हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। पर जब हम बॉन्ड पेयर्स काउंट करेंगे तो हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड को काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं। तो उस अकॉर्डिंग कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि डबल बॉन्ड बना हुआ है तो कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रखा है, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं अगर ऑक्सीजन से शेयरिंग कर ली उसके बाद। सो लोन पेयर तो इस पर कोई भी नहीं है। सो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 2 + 0 दैट इज 2। सो इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज लीनियर, एंड जो इसकी शेप है दैट इज ऑल्सो लीनियर। वाई, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर कोई भी नहीं है तो शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्योमेट्री जैसा ही होगा। So both the geometry and shape for carbon dioxide molecule is linear. Next example देखते हैं, different example, AB3 type, जहाँ पे एक central atom हो और उससे 3 bonds से 3 atoms जुड़े हो। For example BF3। So यहाँ पे जो बोरोन है वो central atom है। बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करके अपने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3। अब बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3। उसने तीनों के तीनों यूज कर लिए बॉन्डिंग में। अगर तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो अब बोरोन पे तो कोई इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं, तो लोन पेयर 0। So for here boron bond pairs is equal to 3, lone pair is equal to 0. तो total electron pairs कितने हो गए, 3. And we discussed that for 3 total valence electron pairs the geometry would be trigonal planar. Geometry हो गई trigonal planar for AB3 type molecule. इसी में अगर हम शेप की बात करें, क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स इंक्लूडेड थे, लोन पेयर नहीं,
तो इसकी भी शेप क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर. सो वी कैन कंक्लूड दैट इफ देयर इज एनी सच मॉलिक्यूल विच इंक्लूड्स ओनली बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर्स, फॉर देम द ज्योमेट्री एंड शेप विल बी सेम ऑलवेज. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल AB2L टाइप एंड एग्जाम्पल इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. अब ये AB2L टाइप क्या है, देखो A यहाँ पे सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, B बॉन्डिंग पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और L लोन पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो AB2L टाइप मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसमें एक सेंट्रल एटम होगा, 2 बॉन्डिंग पेयर्स होंगे एंड एक लोन पेयर होगा. एग्जाम्पल SO2 में ये अप्लाई होता है, देखते हैं कैसे. सेंट्रल एटम सल्फर है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस तरह से होता है. सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6. इसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करें तो आप देख सकते हो सल्फर दोनों ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, राइट. डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा जरूर हुआ है, बट इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो हम सिर्फ कौन से वाले करेंगे, बॉन्डिंग पेयर्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड. तो हमारे पास 2 बॉन्डिंग पेयर्स हो गए, हम डबल बॉन्ड काउंट नहीं करें, सिर्फ SO बॉन्ड. सो वो क्या हो गया, 2 बॉन्डिंग पेयर्स. अगर लोन पेयर की बात करें तो सल्फर पे लोन पेयर कितने होंगे, जल्दी बताओ. देखो सल्फर पे जो लोन पेयर होते हैं दैट इज 1. अब ये 1 कैसे आया, यहाँ पे वही चीज अप्लाई हो रही है कि सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने अपने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, दोनों 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 उस ऑक्सीजन के साथ, और बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है सल्फर के ऊपर. सो ये एक लोन पेयर है. सो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है. सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 3. सो यहां पर भी क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर. बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आती है, यहाँ पे ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर है बट शेप ट्रायगोनल प्लेनर नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर का भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है. क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है तो लोन पेयर को हम शेप में इंक्लूड नहीं करते. अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप लोन पेयर को इग्नोर कर दो तो उसके अलावा शेप आपको कैसी दिख रही है. अब लोन पेयर इंक्लूड करते तो ट्रायगोनल प्लेनर दिखती है, बट लोन पेयर हमने इंक्लूड नहीं किया तो शेप कैसी दिख रही है, बेंट शेप. तो उसी के बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसकी शेप क्या होती है, बेंट. नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है जब हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली हम पढ़ सकते हैं, इस पे एग्जांपल और क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब 4 जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे अभी हमने पढ़ा 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी थी, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर. 3 के लिए क्या पॉसिबिलिटी थी, अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं टोटल, या तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हो या फिर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो. इसी तरह से अगर 4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कब कब पॉसिबल है, या तो ये हो कि चारों बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो जैसे मीथेन में होता है, या फिर 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो जैसा अमोनिया में होता है, या फिर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जो कि वाटर के लिए होता है. सो इनको एक एक करके हम समझेंगे और कंपैरेटिवली देखेंगे इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. द फर्स्ट टाइप दैट इज AB4 टाइप, CH4 मीथेन इसका एग्जाम्पल है. यहाँ पे जो आपका सेंट्रल एटम है दैट इज कार्बन. अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, उन चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स बना लिए. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन यानी कि 4 बॉन्ड पेयर्स. बॉन्ड पेयर 4 हो गए. अब कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों उसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए तो लोन पेयर तो उस पर बचा ही नहीं. सो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम क्या हो गया, 4. तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कमिंग आउट टू बी 4. अगर इसकी ज्योमेट्री देखें क्या है, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या होगी, शेप इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी. रीजन बीइंग अभी हमने बताया 4 बॉन्ड पेयर है बट लोन पेयर तो 0 है. दैट मीन्स कि इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, दैट इज टेट्राहेड्रल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, AB3L टाइप. So AB3L type, as the formula suggests, it is having 1 central atom, 3 bond pairs and 1 lone pair. Its example is NH3, that is ammonia. So here central atom is nitrogen. We know nitrogen has 5 valence electron. इनका distribution देखते हैं.
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से नाइट्रोजन ने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। 2 अभी भी बच गए, तो 3 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, सो 3 बॉन्ड पेयर्स, और 2 अभी भी बच गए। वो 2 कैसे प्रेजेंट होंगे? एज अ लोन पेयर। सो अमोनिया कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, दैट इज अ टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री तो भाई टेट्राहेड्रल हो गई। शेप के लिए इसमें शेप अलग होगी, क्योंकि लोन पेयर भी आ गया है। सो हम लोन पेयर को नहीं इंक्लूड करते शेप में, तो अगर आप लोन पेयर हटा के शेप देखो तो आपको इसकी पिरामिड जैसी शेप दिख रही है। दैट इज द रीजन वी नेम इट्स शेप एज पिरामिडल इन शेप। क्लियर? नेक्स्ट टाइप AB2L2 टाइप। सो अब आप धीरे धीरे समझने लगे होंगे, अब सब एग्जांपल्स को आप इतनी जल्दी जल्दी कर पाओगे। जैसे AB2L2 टाइप है, सो इसमें A सेंट्रल एटम, 2 बॉन्डिंग पेयर और 2 लोन पेयर। इसका एग्जाम्पल होता है H2O, दैट इज वाटर। सो इन वाटर सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, valence electron present on oxygen are 6. If we see these 6 electrons distribution, so oxygen have used 2 of its electron in overlapping with hydrogen, in bonding with hydrogen, so 2 bond pairs, valence electron 6 थे, use कितने हुए? Only 2. So अभी भी कितने बच गए? 4 electrons. These 4 electrons will be present as 2 lone pair on oxygen atom. सो अगर ओवरऑल देखें तो इस पे 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स है, दैट इज अ सम ऑफ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 4 के लिए ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी? टेट्राहेड्रल, बट शेप हमेशा सेम नहीं होगी। शेप में लोन पेयर हटा के देखेंगे। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आप लोन पेयर को इंक्लूड ना करो, ज्योमेट्री में इंक्लूड किया बट शेप में इंक्लूड ना करो, तो शेप कैसी आपको दिखेगी? बेंट। सो आप इसके बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हो दैट वाटर इज हैविंग बेंट शेप। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई वाटर इज हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट शेप बेंट, तो आप इसको अब एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो, इसी के साथ जो अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, वो तीनों हमने डिस्कस कर ली। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर वाली भी मीथेन में, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाली भी अमोनिया में, और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाली भी वाटर में। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, AB5 टाइप, ये होता है PCl5 में। अगर आप AB5 टाइप की बात करो, सो दिस इज द एग्जाम्पल इन विच 1 सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट एंड 5 बॉन्ड्स आर बीइंग मेड, तो 5 बॉन्ड पेयर्स। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम और उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेके उसने 5 क्लोरीन के साथ सिंपल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। सो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 बॉन्डिंग में यूज कर लिए, तो लोन पेयर तो हो गई नहीं। दैट मीन्स इन PCl5 देयर आर 5 बॉन्ड पेयर्स बट 0 लोन पेयर। सो ये भी कैसी मॉलिक्यूल हो गया जिसमें कोई लोन पेयर इंक्लूडेड नहीं है, तो इसके लिए भी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? सेम। So we have discussed this earlier that for any molecule which has 5 total valence electron pairs, the geometry is trigonal bipyramidal and the shape also will be trigonal bipyramidal for PCl5 because there are no lone pair orbitals involved. Next example, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का ही एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज AB4L टाइप, दैट मीन्स 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सो इसका एग्जाम्पल होता है SF4। इसमें आप देख भी सकते हो सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से इसने 4 को यूज कर लिया 4 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड करने में, तो बॉन्डिंग पेयर्स 4 हो गए। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, अभी कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में सल्फर पर प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट हियर द सेंट्रल एटम सल्फर has 4 bond pair and 1 lone pair. So total valence electron pair 5. For 5 valence electron pair, we know the geometry is trigonal bipyramidal. So geometry is trigonal bipyramidal. Shape क्या होगा? Seesaw. Shape कैसे बताया? अब आप स्ट्रक्चर देखो कैसा आपको दिख रहा है। हमने एक पोजीशन पर क्या लगा दिया? लोन पेयर लगा दिया। अब हमने एक पोजीशन पर लोन पेयर लगा दिया है। अब लोन पेयर लगने के बाद बाकी अगर आप चारों पोजीशन देखो आपको कैसे दिख रही हैं? एक सीसो जैसा होता है ना, जिसपे बच्चे स्विंग करते हैं, सीसो होता है, ये वैसा ही दिख रहा है। सो इसलिए हमने इसकी शेप बोल दी सीसो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। AB3L2 टाइप,
दैट मीन्स वन सेंट्रल एटम हैविंग 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स. इसका एग्जाम्पल है ClF3. लेट्स सी हाउ. सेंट्रल एटम इज क्लोरीन. Valence electrons are 7 on chlorine. From the 7 electrons, chlorine is using 3 to form bonds with 3 fluorine. So 3 bond pairs present. अभी 7 में से 3 उसने यूज कर लिए, 4 अभी भी बचे. ये 4 electrons कैसे present होंगे? As 2 lone pairs. So chlorine has 2 lone pairs and 3 bond pairs. That is the sum of total 5 valence electron pair. So ये भी 5 वाले का example था. इसमें भी जो geometry होगी that will be fixed, that is trigonal bipyramidal. But if we talk about shape, among these 5 positions of trigonal bipyramidal, we have replaced 2 bonds by 2 lone pairs. So the shape looks like a T-shaped molecule. It is very evident. So that is why conclude the shape of AB3L2 type molecules, that is ClF3 also, as T-shaped, because it contains 3 bond pair and 2 lone pair. So with this, we have discussed all the examples of 5 electron pairs. The last one which we need to discuss is the example of 6 electron pair molecules. The first one is simply AB6 type, in which there will be one central atom having 6 bond pair and 0 lone pair. Example is SF6. Central atom sulfur है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर पर 6 हैं, बॉन्ड पेयर 6 ही है क्योंकि वो सारे के सारे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है 6 फ्लोरीन के साथ. लोन पेयर कोई भी नहीं है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 6 के लिए हमने ज्योमेट्री क्या डिस्कस की थी? ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए. सो ज्योमेट्री वुड बी ऑक्टाहेड्रल. क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का तो कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, तो शेप भी क्या रही? ऑक्टाहेड्रल ही रही. नेक्स्ट मॉलिक्यूल AB5L टाइप. सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. कैसे? सेंट्रल एटम जिसपे 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल 6 हो गए. एग्जांपल देखते हैं BrF5. सेंट्रल एटम इज ब्रोमीन. ब्रोमीन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे. उस 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए. तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 5. लोन पेयर्स कितने हो गए? जो बाकी ब्रोमीन पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो एज लोन पेयर प्रेजेंट होंगे. सो 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, दैट इज अ टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. If we talk about the geometry, it is octahedral. If we talk about the shape, it is square pyramidal. कैसे? ज्योमेट्री तो हमारे लिए सिंपल है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑक्टाहेड्रल होगी. शेप में हम क्या करेंगे? लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो अगर आप लोन पेयर को हटा भी दो तो आप देख भी सकते हो कि एक स्क्वायर में ऐसा लग रहा है कि ऊपर एक एंड इंक्लूड कर दिया, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल. नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं. नेक्स्ट वन इज AB4L2 टाइप. अब ये कैसा है? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला ही है. एक सेंट्रल एटम, 4 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स. इसका एग्जाम्पल होता है XeF4. सेंट्रल एटम यहाँ पे जीनॉन है. जीनॉन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8. अब उन 8 में से वो XeF4 मॉलिक्यूल बना रहा है. दैट मीन्स उन 8 में से वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए. सो इस 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. सो 4 बॉन्डिंग पेयर्स. अब जेनॉन पे टोटल तो 8 थे, उसमें से सिर्फ 4 ही बॉन्डिंग में यूज हुए. अभी भी कितने बच गए? 4. सो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे? इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर. सो 2 लोन पेयर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे, राइट? सो टोटल क्या आया हमारे पास? 4 बॉन्डिंग पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, दैट इज अ सम टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल. बट शेप की बात करें, क्योंकि लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो शेप और ज्योमेट्री तो सेम नहीं हो सकते. सो यहाँ पर शेप क्या होगी? एज आप देख सकते हो कि 2 पोजीशन पे जब हमने लोन पेयर लगाए, हमने सामने सामने वाली पोजीशन पे लगाए टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड टू गिव इट अ सिमेट्रिकल लुक. सो यहाँ पर अब जो आप रिमेनिंग बॉन्ड्स देख रहे हो, शेप में हमने लोन पेयर तो इंक्लूड नहीं किया. अगर आप सिंपली बॉन्ड पेयर्स को देखें तो आपको यही लग रहा है कि एक प्लेन में स्क्वायर सा बना हुआ है. सो दैट इज वाई फॉर XeF4 we say the shape is square planar. Okay.
So with this, we have discussed and completed the VSEPR theory completely. We have discussed its postulates, its basics, how different electron pairs will have different types of geometry, what is the difference between geometry and shape, and we have discussed a very large number of examples related to the VSEPR theory and how to explain this VSEPR theory efficiently. I hope all the examples are clear to you, but if you find any doubt in any of the examples, kindly mention it in the comment section, and if you find the video useful, kindly like it, share it with your friends, and do mention it in the comment section. Thank you so much.